कहावत है कि जब दुनिया जश्न मनाती है तभी भी पुलिस फोर्स अपना काम कर रही होती है। हम घर पर चैन से रहते हैं, लेकिन हार्डली आई थिंक वी नोटिस कि चाहे वो धूप हो, चाहे वो कड़कड़ाती हुई ठंड हो, पुलिसकर्मी हमेशा हर जगह तैनात रहते हैं। अ बिग सल्यूट टू देम। और आज के एपिसोड ऑफ हाउस द जोश में मेरे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। और इनकी जो लाइफ की जर्नी है वो इतनी एक्साइटिंग और एडवेंचरस है कि वी हैव टू लिसन टू इट फ्रॉम हिम। आई हैव द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ हैविंग श्री सुखपाल सिंह विथ मी। वेलकम टू योर हाउस द जोश। थैंक यू मैडम। सो हाउ हैज़ द जर्नी बीन? जब आपने एक छोटे गांव से शुरुआत करी और उसके बाद जब आप एक डेप्टी एसपी रिटायर हुए। हाँ, एक्चुअली माय फादर वाज मैकेनिकल इंजीनियर इन पंजाब। तो फ्रॉम अप टू 4th क्लास आई स्टडीड इन दिस वेरी विलेज। आफ्टर दैट आई वाज शिफ्टेड टू फगवाड़ा, दैट इज इन पंजाब। आई डिड माय graduation, I did my matric from SD High School Jagadhri, that is in Haryana at this time. Previously it was in Punjab at that time. After that I joined the DAV College Jalandhar, did my intermediate from that college, from the science student. After that I came to Ramgarhia College Fagwada, that is also very adjacent to Jalandhar. And after that I did my MSc part first from DAV College Jalandhar. Okay. So that is my last right. I have the aptitude for the engineering because I am a science student. I have the engineering section. All over India competition there is a aeronautical engineering college Ernakulam, whereas I was selected there. Okay. But my father has the ambition that I should join the police and do something concrete for the masses. And for the sake of the country. That is my father's ambition, my father's life dream. So I joined the police department in 1962-63 batch. And after having the training of the 1 year in PTC Muradabad, I joined Lakhimpur Kheri on 7/2/1963. That was your first posting? That was my first posting in Lakhimpur Kheri. Okay. After that, joining that period, there is a compulsory 1 year training program in different branches of the newcomers entrants of the police department. After completing this examination, after completing this training period of the 1 year, I remained only second officer for 5 months and 7 days. And after that, I was posted as station officer. In Delhi side it is called the SHO. At this time it is called the SHO. I was posted station officer, police station Melani at that time. I have the only service of the 5 months and 7 days. Personally I feel that it is a UP record. And that record has not been broken so far to my knowledge. So sir, you've had so many awards and recognitions in your service career. You were an encounter specialist. How was the experience of being an encounter specialist? Actually, it's all good credits to my father. Credit goes in this way that after joining the police department in 1963 and having promoted to the rank of the station officer at this small post 5 mahine 7 din only, that is a UP record, and that record has not been broken so far. I think so. To my knowledge, it has not been broken so far. Okay. My father was very strict in discipline here. Madam, you will wonder where I was posted, my father goes to there and asks goes to the masses कि मेरा लड़का रिश्वत तो नहीं लेता. Where I was posted for my initially 5 postings, he went to every station officer where I was posted and asked the general masses, मेरा लड़का रिश्वत तो नहीं लेता. After that, before that, I may tell you, I joined RSS.
वहाँ के जो संस्कार मुझे मिले आरएसएस के जी। कि लॉयल्टी टूवर्ड्स द कंट्री, डेडिकेशन टू द सर्विसेज, ये वहाँ से भी मुझे मिला। जी। क्योंकि आरएसएस के अंदर आई वाज ए मुख्य शिक्षक एट दैट टाइम इन डीवी कॉलेज जलंधर। आई गॉट द इंस्पिरेशंस फ्रॉम दैट साइड आल्सो। जी। That inspirations coupled with my father's guidance resulted my life, and throughout life it has a great impact even up to this stage. वो impact अपनी जगह कंटिन्यू है। थर्ड जो अपनी जगह है वो मेरी वाइफ का। जी। उन्होंने कभी भी लाइफ के अंदर, उनकी डेथ हो चुकी है 2005 के अंदर, कभी भी मेरी लाइफ के अंदर ये नहीं कहा कि मुझे पैसा दो। जो तनख्वाह आई वो मैं जाकर उनके हाथ के अंदर दे देता था और उसी से वो अपना कैसे मैनेज कर रही थी मुझे नहीं मालूम है। कभी भी उन्होंने नेगेटिव साइड के लिए आज तक मेरे से नहीं कहा, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ के अंदर है। आरएसएस के अंदर देश के प्रति भक्ति, जनता के प्रति लगाव, एक कर्मठता, निष्पक्षता, ये सब चीज़ें मेरे वहाँ से, मेरी वाइफ से और मेरे पिताजी ने जो मार्गदर्शन किया उसकी वजह से मेरे लाइफ के अंदर आई। जी। अभी 1964 की बात है। जी। मैं वहाँ पोस्टेड था एसओ मेलानी। जी। एसओ मेलानी इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। स्टार्टिंग की बात है, आई वॉज सिटिंग in my office and studying the case diary. Okay. एक retired, एक well personality, जी। सरदार came to me. Okay. उसने कहा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ जी। मैंने कहा नहीं, आप बैठिए, यू आर ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, जी। प्लीज बैठिए। कह लगे ऐसा ना हो कि मुझे आप फिर खड़ा कर दें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, भी क्या कह रहा है, खड़ा ना कर दें। मैंने कहा बताइए क्या बात है। कहने कि मैं मुकदमा नंबर फला धारा 302 का नामजद मुलजिम हूँ, मीन्स आई एम एक्यूज ऑफ अंडर सेक्शन 322 IPC। मैंने देखा है अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, ये क्या कह रहा है। मैंने कहा बताइए कैसे। कहने के उसका मुकदमा हूँ। फिर मेरे से कहने लगा क्या मैं बैठ जाऊँ अब। हाँ। मैंने कहा नहीं। अच्छा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई, 302 के आप मुलजिम हैं और आप मेरे पास चले आए। उसने कहा कि मैंने आपकी इंटीग्रिटी के बारे में, आपकी ऑनेस्टी के बारे में, आपकी कार्य प्रणाली के बारे में पब्लिक से सुना, तो मैं हिम्मत करके चला आया। अगर मैं मुलजिम हूँ तो मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है, ऑलराइट। शाम के टाइम उस वक्त तो मोटरसाइकिल जीप वगैरह थानों में नहीं हुआ करती थी। साइकिल से अपने साथ 2 कांस्टेबल लिए हम उनके फार्म पर पहुँचे जहाँ उनका मर्डर का था। जितने भी विटनेसेस थे और जो मुद्दई था, मुद्दई का मतलब कंप्लेनेंट, जिसने FIR लिखाई थी उसके खिलाफ, वो सब के सब टॉप क्लास गवाही दे रहे। अंदर से कॉन्शियस कहे कि नहीं कुछ है। हम लौट के फिर आ गए, नेक्स्ट डे फिर गए तो उसकी मदर बैठी हुई थी वहाँ पर और वो दूर से ट्रैक्टर चला रहा था जो कंप्लेनेंट था। जी। मैं क्योंकि पंजाबी जानता था, आई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ डीवी कॉलेज जलंधर है पंजाबी, तो मैंने उससे पंजाबी में कहा मगर देखो थाड़े उत्ते किन्ने और परेशानियां आनियां ने। तो उसके मुंह से निकला साहब मेरे बच्चे को बचा लो। अच्छा। तो एकदम दिमाग सनका। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो वहाँ से दूर से चिल्ला के कहता है कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, यदि गल ना सुनो। मैंने कहा ठीक आ जाओ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उसको लेकर के ट्रैक्टर से हम लोग अपना थाने आ गए। थाने आकर के मैंने 4-5 सिपाही बुलाए। मैंने कहा इसको इंटरोगेशन करना शुरू करो। वो कहता सब जो तुसी पूछना हैगा पूछो ना, मारपीट की कोई गल ही नहीं है, पूछो सही मैंने की पूछना हैगा। मगर मर्डर किसने किया? कहता है मैंने किया, मतलब लड़के ने बाप का मर्डर किया। मैंने कहा क्यों? कहने के जो बुढ़ा हैगा इनू टीबी की बीमारी हैगी, ये 4-5 महीने का मेहमान हैगा, मैं इनू मार के जो सरदार जो दूजा है वॉज मेजर इन मिलिट्री, कहने उसकी ज़मीन में हड़प ले लेता। मैंने कहा तुमने इतनी बड़ी हिम्मत की? कहने लगा
मेरे से कहता है कि आपको क्या चाहिए बोलिए, तो और दिमाग खराब होगा। मैंने कहा तुमने पीछे वालों को क्या दिया है? कहने का सब छोड़ो, तुसी अपना बोलो। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मैंने एसएसपी को बुलाया, मैंने कहा ये मुलजिम है, मुलजिम वो नहीं है। उसको जेल भेज दिया, उसको कन्विक्शन हुआ। तो आज भी इतना सेटिस्फेक्शन होता है कि जिस आदमी को फांसी हो सकती थी उसको फांसी के रास्ते से बता के सही मुलजिम को हम लोगों ने जेल भेजा। That's wonderful, sir. हाँ, दैट इज आज भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ। आई डिड माई जस्टिस। Yes, uncle. एक दफ़ा दूसरे थाने में मुझे मालूम हुआ, मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे, एक मैं था। जी। नीम गांव थाना था, वहाँ पर जा कर के मालूम हुआ कि गैंग आ रहा है। तो गैंग विलेज से जब आ रहा था तो नहर थी, हम नहर के बेड में चले गए। Okay. अब बेवकूफ़ी थी उस वक्त, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा कि बेड के नीचे हम आ गए, गैंग हमारे ऊपर है, तो नेचुरली वो हमें जगह इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर एक जो गैंग लीडर था उसको मारा, मेरे भी इंजरी आई, मुझे बल्लम मारा गया था। ये मेरा बल्लम आज भी लगा हुआ निशान है उसका, बल्लम लगा हुआ था, यूँ सीधा सीने पर मारा था। लेकिन अपनी जगह बच गए, वो गैंग अपनी जगह। पहला मेरा एनकाउंटर था ये 1963 का मेरा का पहला एनकाउंटर था। Okay. उसके बाद चले अपनी जगह, मैदानी के बाद फिर दूसरी जगह पोस्टिंग हुआ और 3.25 साल की सर्विस में ही मैं पोस्टिंग हो गया था एसओ कोतवाली लखीमपुर खीरी। उसमें 17 तो आउटपोस्ट थी और 17 आउटपोस्ट के बाद उसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर थे वो मेरी बाप की उम्र के थे, क्योंकि एट दैट टाइम वाज ओनली 24 रोड्स। वो कोई 50 साल का, कोई 55 साल का, कोई इससे अपने रोड थे। उनसे भी काम लिया मैंने और एग्जाम्पल सेट की कि कैसे वर्क लिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने अपनी वाइफ के बारे में बताया, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो मेरे साथ रही, हमेशा इतना साथ दिया कि ईश्वर सबकी वाइफ सबका इतना साथ दे। मैं तो ये कह सकता हूँ मेरी जो शक्ति थी, कभी विचलित हुआ, परेशान हुआ, हमेशा एक वर्ड सुन के रहते थे। वो कहा करती थी बाबूजी मैं आपके साथ हूँ, परेशान क्यों हैं? तो कभी कमज़ोरी मन के अंदर आई, हताशपन आया, तो वो 2 मिनट के अंदर अपनी जगह दूर हो जाता था। मैंने आपको बताऊँ मैडम, 31 जनवरी 99 को मेरा रिटायरमेंट हुआ और मैं तो हर रिटायर्ड पुलिस अफसर को, क्या एवरी रिटायर्ड ऑफिसर को, रिटायर्ड आदमी को जो 60 और 70 के ऊपर हो चुका है, उसके लिए यही कहूँगा, ही शुड कीप हिमसेल्फ बिजी। बिजी रखे अपने आप को, वरना कहेगा 4 पे लेट जाएगा, अरे बहू पानी ला दो, अरे बेटा पानी ला दो। क्यों? अरे काम करो, अपना बिजी रहोगे, अपने आप अपनी जगह सेहत ठीक रहेगी। अगर 4 पे पकड़ ली और बिस्तर पकड़ लिया तो कब तो बेचारी बहू पानी ला कर देगी। मेरे लड़के की बहू है, बहुत अच्छी है, भगवान सबको ऐसी बहू मिले, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन बूढ़े आदमी को बर्डन नहीं होना चाहिए घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर। This is the secret of your fitness at the age That's of the 82? secret of my fitness. I am at this time 82। मैं यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, करनाल के अंदर मेरा काम चल रहा है, वहाँ पर 125 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर मेरा अपना काम चल रहा है, लीज पे ज़मीन ले रख के काम करता हूँ। बच्चे मेरे से कहते रहते हैं कि डैडी घर आ जाओ, डैडी घर आ जाओ। मैं कहाँ आ जाएगा। You are happy in your own space. बस, क्योंकि एक चीज़ तो देखिए, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स का ओरिजिन ये है कि आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग को खाली मत रखो, शैतान का घर कहाँ से हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ और भी है कि आपकी जेब में 100 का नोट है, वो दिखाई सबको दे, देन यू आर वेरी गुड, अदरवाइज मामला गड़बड़। हाँ, एक तो आप अच्छे कार्य करें, दूसरा बच्चों के लिए आप हेल्पिंग हैंड बने। हाँ, मेरी इस वक्त 2 बेटियां हैं, एक बेटी की मेरी डेथ हो चुकी है, मेरा बेटा है। कभी भी मेरे से 1 पैसे की आशा नहीं करते हैं। मैं खुद कुर्सी दे दूं तो उसी बात है। मेरे 2 ग्रैंडसन हैं, मैं उनको देता रहता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, रात को दोनों मेरे पास सोएंगे। आई एंजॉय माई लाइफ। काम पर चला जाता हूँ।
But you always look forward to the next day because of the work. And sir, talking about having worked with so many politicians, how was it working with Indira Gandhi? मैंने इतना स्विफ्ट डिसीजन लेने वाला लीडर मैंने नहीं देखा है. शी इज़ ए वेरी डायनेमिक लेडी, शी इज़ ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट लेडी. मैं फ़ख्र के साथ है, मुझे कुछ कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे उनके साथ एकांत का मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये गेस्ट हाउस सामने होता था, उसमें जहाँ एंट्री जाती थी तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अकेला मैं जाता था. वहाँ तक पूरे 1 मिनट, समझिए यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट. उस 1 मिनट के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स उनको बतानी होती थी. इतनी इंटेलिजेंट लेडी थी कि उनके सामने गीत गाने की आवश्यकता नहीं है, एक लफ्ज़ बोलो, दैट इज़ सफिशिएंट. और उनको याद रहता था कि किसने क्या लफ्ज़ बोला है. मेरे गांव की सड़क का मैटर था, मैं आपको बता रहा हूँ. हापुड़ से जिस रोड से आप आए हैं, ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तकरीबन एक घंटा लगता था. मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, इंदिरा जी से कहा, मैं कहा साहब मेरे गांव की सड़क, और कुछ नहीं. दिन भर उन्होंने 18 मीटिंग रायबरेली में करती थी. मैं इंस्पेक्टर कोतवाली रायबरेली था, तो सारी मीटिंग में हम लोग को रहना पड़ता था. हर मीटिंग का इंचार्ज जो है एसपी रैंक का होता था प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन कई बार कोई नहीं होता था, इंचार्ज मुझे बना दिया जाता था. हाँ. एंड सर, रिटायरमेंट के बाद आप अपने गांव आ गए और आपने अपने गांव के लिए बहुत काम किया है. देखिए, गांव के लिए सबसे बड़ा जो मेरे कंट्रीब्यूशन गांव के लिए है वो सड़क का है. मैडम एक चीज़ और बता दूँ, विलेज पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ख़राब है. बहुत अच्छी और बहुत ख़राब है. हम उसको बैलेंस करके चलना एक किस्म का हरकुलियन टास्क है. मैं गांव में, आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, मैंने आज तक गांव में वोट नहीं डाला अपना. क्यों? जिसके प्रति मैं वोट डालूंगा, मैंने मान लीजिए आपके प्रति वोट डाला, तो मेरे मन की भावना क्या पैदा होगी, ये जीत जाए, ये हार जाए. वो भावना मैंने आज तक गांव में नहीं आने दी, क्योंकि मैं सबका हूँ, सबके लिए हूँ, सबकी अच्छाई के लिए हूँ. मैं किसी का बुरा नहीं हूँ. बाहर वोट डाल दिया, अपना सबको कर दिया, लेकिन गांव की जो प्रधानी का इलेक्शन होता है, मैंने आज तक वोट नहीं डाला. क्योंकि मैं तो सबका हूँ, मेरे लिए सब एक हैं. मैं क्यों किसके प्रति वैमनस्यता का विचार ही अपने मन के अंदर आने दूँ. हाँ, जब मैं उनको वोट दूंगा, किसी आदमी को वोट दूंगा, तो मेरे मन के अंदर क्या भावना होगी, यही आदमी जीते, दूसरा हारे, उसके प्रति मन में दूसरे भाव होंगे. इसलिए मैंने गांव में वोट आज तक नहीं दिया और ना दूंगा. क्या इसको कोई कुछ भी कहे, कोई कहे कि आपने जो आपका हक है उसका आप इस्तेमाल नहीं करते, जो जिसका मन में कहे, आई डैम केयर फिर. लेकिन मेरे सब हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी का भी है, वो सब मेरे हैं. मेरे बस की जो भी सेवा होती है मैं करता हूँ. तो मैडम, आपकी ईश्वर की कृपा से इस डिपार्टमेंट ने जो दिया है, बहुत दिया है. रिस्पेक्ट दी है, हर चीज़ दी है. देखो, आप ताज्जुब करेंगे, जिस पोस्ट से मैं रिटायर हुआ, पता मैंने मकान अपना कब बना पाया. जब मैं रिटायर हुआ तो किराए के मकान पर आकर रहता था. मेरा अपना मकान नहीं था. अपने 20 बीघा ज़मीन बेच करके तब मैंने मंगल पांडे नगर के अंदर अपना मकान लिया. पता मेरे को कुछ भी नहीं था सब कुछ. सांसारिक तौर से कुछ नहीं था क्या, एक विश्वास, एक शांति, एक आत्मा का सम्मान, ये था. एंड सर, डू यू थिंक दैट अ नॉर्मल पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि एक पुलिस कर्मी जो है वो कितना अपने मोटिवेशन के लिए और अपने काम के लिए कितना अपनी फैमिली से दूर रहता है और कितनी सैक्रिफाइसेस करता है? यू थिंक अ नॉर्मल पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट? यस सर. वन थिंग आई विल टेल यू मैडम, कि सेटिस्फेक्शन जो है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल सेटिस्फेक्शन. इंटरनल सेटिस्फेक्शन कब हो गया आदमी को, जब वो कॉन्शियसली सही तरीके से सही काम करेगा. फिर कितना भी लाइफ के अंदर कुछ है, कोई टेंशन नहीं होती थी. मेरे पूरे परिवार ने, सब लोगों ने मेरा इस मामले में साथ दिया. शायद अगर मेरी वाइफ मेरा साथ ना देती होती तो शायद फेल हो सकता था. शायद फेल हो सकता था. बट यू passed out with flying colors.
You've had so many awards and appreciations, Yes. and everywhere you were recognized for your work. मैडम एक चीज़ है, मेरे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और मैं तो एक ही कहूँगा, अपने जो भी आजकल की जनरेशन है, आजकल का नया स्टाफ आ रहा है, कॉन्शियसली दे शुड वर्क। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो आत्मा है, आप गलत काम के करेंगे। मान लीजिए इनकी जेब में पेन लगा हुआ है, मैं सोचूं इनकी जेब से पेन निकाल लूँ, तो मन के अंदर एक भाव जागृत होगा, नहीं गलत है, तुम्हारा नहीं है, डोंट टच इट। लेकिन लालच और ये सब जो है मजबूर कर देंगे उनका पेन निकालने के लिए। तो जब गलत काम होगा तो उसका रिजल्ट गलत ही निकलेगा, अच्छा नहीं निकल सकता। तो इसलिए आदमी को एक कॉन्शियस की आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए। वो आवाज़ जो है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। हाँ, इसके लिए कांस्टेंट आपको मंथन करने की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट ईश्वर का ध्यान करने की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब विचलित होने लगे, मान लीजिए मैं डंडे लेकर चला हूँ, मैं लटखड़ने लगा हूँ, तो मुझे कोई थामने वाला होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। सारा मेरे साथ था, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो कहने का मतलब मेरा, हमेशा एक चीज़ दिमाग में अपने रखिएगा, कोई भी पुलिस अफसर को मैं ये कहूँगा कि किसी से डर करके गलत काम नहीं करना चाहिए, ना लालच और शिकम करना चाहिए। जहाँ लालच और डर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पर नुकसान होगा, आप सही कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ। मेरे आदर्श मैंने कहा, वीके सिंह साहब रहे, जो चीफ मिनिस्टर से कह दिया कि मैं नहीं रहूँगा, जिले के अंदर छोड़ के चल दिए। कानपुर के अंदर एसएसपी थे, एक नेता ने उनको थोड़ा सा गलत बोल दिया, उन्हें कहा गेट आउट। तो मैं तो ऐसे ऐसे मजबूत अफसरों के साथ रहा हूँ जो मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा बने रहेंगे। Thank you so much, sir. I hope we're all inspired by you, and I take back so much of inspiration from you. Thank you for your time, sir. नहीं, An 82-year-old man still inspiring so many people. मैं इनके गांव में हूँ जो इन्होंने अडॉप्ट किया है, और everybody in this village has to only say wonderful and amazing and inspirational things about him. मदद करी रास्तों के लिए एक पुल बना था, काफ़ी पहले हमारे गांव ने बनाया है, वो खुद गांव में बहुत अच्छा पुल बनाया। बड़ी समस्या थी नदी में, उनने इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कई सारे रास्ते इन्होंने बनाए हैं, बनवाए अपने उससे प्रयास से। और मिलनसार आदमी, हर आदमी से मिलते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उससे कोई इनका सरोकार नहीं है। लेकिन हम सफ़र है बिल्कुल, जहाँ बैठते हैं उनके जैसे होते हैं। और जब गांव में आते तो 10-5 जगह बैठते भी निश्चित है, ये भी है। वर्तमान में भी ज़रूर बैठते हैं अगर आए हैं गांव में, और हर आदमी जो इज्जत करता है। ये जी, मैं सत्येंद्र सिंह, पूर्व प्रधान, मुरादपुर निजाम से। सर, हमारे गांव के, हमारे तो परिवार के हैं, और हम तो पहले से, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी सलाह की ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए हर समय हाजिर रहते हैं। और गांव में जो हमने काम किए, हमें लखनऊ का काम पड़ा या कहीं का काम पड़ा, तो हमारे साथ हरदम तैयार रहते हैं। गांव में जो सड़कें वगैरह कहीं से हमें ले आए, विधायक कोटे से सब साथ में जाके जैसे भी अपना हो गया तो ले आए पूरे गांव के लिए। और हर बच्चा, हर व्यक्ति सर की बड़ी इज्जत करते हैं। जैसे ही गांव में आते हैं तो हर आदमी जिसे पता चलता है वही मिलने चले आता है। तो यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में ही इनकी काफ़ी इज्जत है। और किसी व्यक्ति का कुछ भी काम हो, ये हर समय तैयार रहते हैं। एजुकेशन के बारे में सर का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है जो हमारे विधायक जी ने बनाया है, वो भी गाँव में, वो भी सर की मेहरबानी है जो उन्होंने विधायक जी से जाके रिक्वेस्ट की, उन्हें यहाँ जगह दिलवाई और यहाँ एक डिग्री कॉलेज बन गया, जिसके लिए अब हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, सब यहीं पर एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका बड़ा धन्यवाद करते हैं हम सर का। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान पुरुष शायद हमको बहुत कम मिलते हैं। शासन प्रशासन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें या दफ्तर की बात करें, तो प्रोटोकॉल का जितना शायद वो यूज अपनी लाइफ में करते थे, मैंने किसी और को करता नहीं देखा। तो एक बड़े अच्छी सक्षम और सफल उन्होंने प्रशासनिक सेवा अपने समय में
पूरे राज्य के लिए दी हैं, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते ये श्रेय उन्हें मिलना भी चाहिए। इसके साथ साथ उसके बाद जब वो एक पारिवारिक दृष्टि से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहे तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं, जैसे नर्सरी का काम है, नए नए वृक्षों का निर्माण है, या इनकी सप्लाई की बात है पूरे राज्य स्तर पर या देश स्तर पर उन्होंने इस कार्य को किया है। जीवन में कभी भी कार्य करते हुए वो थके नहीं और आज भी वृद्धावस्था में इसी तरह से वो कार्य कर रहे हैं। एज एक सोशल साइंटिस्ट भी उन्होंने क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में जाकर के भी कार्य किए हैं। अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं और इसी तरह से वो सेवा करते रहें, ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों का हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I was in conversation with an amazing man that I am so inspired by today. This is me, Aarti Karthik, saying this is all on this episode of House of Josh, and do join me in the next one. Thank you so much for your time.